Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel, The Commerce Academy. The topic for today's session is economic activities. Before starting with today's session, let's revise what we had studied in our previous session. In our previous session, we have seen the definition or meaning of economics. And what does the economics mean? Economics is the process of allocating scarce resources between our unlimited wants in order to have maximum satisfaction with regard to a consumer, maximum profit with regard to a producer, and maximum social welfare with regard to the society in general. Now, we will be seeing that what economic activities are. The economic activities are being allocated into 5 categories: the production, consumption, investment, exchange, and distribution. Let's start with production. What is production? Production refers to the process of producing various goods and services in the economy. Now, what do you mean by producing goods and services, or who are the producers? For example, if there is a manufacturing company, the manufacturing company comes under the category of producers because it is actually producing the goods. If there is a telecom industry, the telecom industry comes under the category of producer because it is producing the services, it is providing the services to the public in general or to the consumers in general. So, production refers to the activity of producing goods and services. Now, producing goods and services. Now, who produces goods and services is the producer. If I speak in general, तो अगर हम farmer की बात करें, so what does a farmer do? He produces, he actually grows the crops, है ना? He sows the seeds, he grows the crop, harvests them, and then provides them in the market, and then supplies them in the market for consumption, right? Now that is what a producer do. Production means when you're producing something new, or you are just modifying something in order to make something new out of what you have. So production is altogether a new process because you're processing something and then you're making the product available to the market. Now, producer, where the work of a producer ends, the work of a consumer starts, right? Because if a farmer, let's take the same example of a farmer. The farmer has sown the seeds, he has grown the plants, he has harvested the production, and now he is in the market in order to sell off his whatever his production is. Now there comes the consumers, because we are the consumers. Every one of us in general is a consumer of either some or the other product. Like wheat or the food grains are major source of consumption as a consumer. So I will take the same example. So here the farmer has grown some crop, for example the wheat. Now here comes the consumer. Consumption is the process of consuming goods and services. A producer produces the goods and services. A consumer consumes the goods and services. Now this is the basic difference. Production is altogether a process of producing the goods and service, and consumption is the process of consuming the goods and service. For example, अगर मैं same example continue करूँ, तो farmer ने wheat grow किया, then वो market में लाया. Market में उसने एक bargain system हुआ या जो भी system हुआ, उसके through उसने वो wheat sell किया. एक consumer ने suppose हम wholesaler का एक element यहाँ से या जो भी intermediaries हैं, उनके अगर हम elements यहाँ से निकाल दें, directly एक farmer से consumer का अगर हम एक channel रखें, तो farmer ने wheat grow किया, market में गया, मार्केट में उसने एक्सचेंज किया और कंज्यूमर ने वो व्हीट खरीदा, घर पे आया एंड उसका फ्लोर बना के उसकी रोटी वगैरह बना के उसने खाई. अल्टीमेटली व्हाट ही हैज डन इज द कंजम्पशन, बिकॉज उसने खरीदा एंड उसने उसको रख के बेचा नहीं. यार ओके, इट्स नॉट अ रिटेलर, इट्स नॉट अ होलसेलर. बिकॉज एक रिटेलर होलसेलर का क्या काम है? दे विल बी प्रोवाइडिंग समथिंग एंड देन दे विल बी सप्लाइंग इट इन द नेक्स्ट मार्केट. Like wholesaler to retailer, retailer to customers, right? But यहाँ पे consumer does not include the wholesalers and the retailers. It includes the people who are actually consuming them.
अगर मैं टेलीकॉम सर्विस की बात करूं, सो हु इज अ कंज्यूमर? अगर मेरे पास एक सिम कार्ड है, आईडिया का एक सिम कार्ड है, तो मेरे पास क्योंकि वो सिम कार्ड है, आई एम यूजिंग दैट टेलीकॉम सर्विस, तो मैं एक कंज्यूमर हो गई। एंड आइडिया जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है, इट कम्स अंडर द प्रोड्यूसर्स। सो मैंने गुड्स से आप लीड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंड सर्विसेज के लिए आप टेलीकॉम सर्विस, इंटरनेट प्रोवाइडर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओला, कैब्स, ऑल दीज आर एक्चुअली इंटरमीडियरीज, राइट? Now, who is producing the services is actually those auto drivers or those cab drivers, and who is consuming them is us. Now, where does the Ola come? Ola के लिए तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, right? तो Ola again comes under the production thing. It cannot come under the consumer thing because it is not consuming. Consumer can only be an end user. Consumer has to be an end user. So a consumer has to be an end user of any product. Okay, producer will produce the product. All intermediaries will be there, wholesalers, retailers, everything, service providers. Then the goods come to the consumers, and consumer is the person who is actually consuming the goods and service. So अगर मैं एक नोटबुक की भी बात करूँ, क्लासमेट एक कंपनी है, क्लासमेट ने एक नोटबुक प्रोड्यूस की, उसने वो सप्लाई करी, एंड मैंने एज अ स्टूडेंट वो बुक लेके उसमें लिखा एंड उसे कंज्यूम किया. सो आई हैव कंज्यूम्ड इट. I cannot sell it off in the next market. अगर मेरे पास एक पावर आ जाती है of selling the same product in the next market, I no more comes under the category of a consumer. Okay. Next is investment. Now, what does this word investment mean? हम बचपन से सुनते आते हैं इन्वेस्ट किया, मैंने एफडीज में इन्वेस्ट किया, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स और इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स. लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इज वेयर यू हैव अ सरप्लस ऑफ मनी. आपके पास कुछ पैसा है एंड यू आर नॉट कीपिंग दैट मनी विद यू. आप वो पैसा अपने साथ ना रख के आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो आप बैंक में दे रहे हो. लेकिन इकोनॉमी में एक्चुअली में बैंक वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा क्लियरली जो कंसेप्ट बनेगा, अगर मैं एक बिजनेस की बात करूं, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आइडल मनी है एंड मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है. अगर मुझे अपना कोई स्टार्टअप करना है एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड मुझे जाके अपना एक स्टार्टअप कर लेना है, तो ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए लिया, मैंने देखा मुझे क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे. जैसे मुझे कोई जगह लगेगी करने के लिए, मुझे कोई सामान लगेगा, मशीन्स वगैरह लगेंगी, तो आई विल बी रिक्वायरिंग ऑल दोस थिंग्स. सो आई विल बी इन्वेस्टिंग माई 1 लाख रुपीज एंड आई विल बी मेकिंग ऑल माई रिसोर्सेज अवेलेबल टू मी in order to start or in order to continue my startup. Okay, so that is what do you mean by investment. अब investment is not necessarily कि मैंने एक startup ही किया. Shares and bonds में भी investment हो जाता है. Now this again constitutes for an economy because अगर आपको पता होगा तो shares actually forms part of the capital of a company, है ना. शेयर्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कैपिटल. अगर मैं एक बड़ी कंपनी की बात करूं, शायद इतने बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स को पता ना हो, लेकिन अगर मैं एक बड़ी कंपनी की बात करूं और उसका कैपिटल कंपोजिशन की बात करूं, उसकी कैपिटल कंपोजिशन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स. अब क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़ी होती है कि वो अपना कैपिटल खुद नहीं ले पाती, तो व्हाट इट डज इज इट इश्यूज द शेयर्स, एंड जो भी जिनके पास भी सरप्लस मनी रहता है मार्केट में, दे गो एंड दे बाय द शेयर्स और उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं. तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी. अगर मेरे पास 1 लाख रुपए मैं आइडली सोचूं कि चलो मैं 1 लाख रुपए रखे रहती हूँ, मुझे इस पर कोई इनकम नहीं होने वाली है. अगर मेरे घर पे 1 लाख रुपीज रखा हुआ है तो मुझे इस पर कोई भी इनकम नहीं होने वाली है until unless I invest it somewhere. या तो मैं एफडीज में इन्वेस्ट करूँ या कहीं ना कहीं करूँ. एंड इकोनॉमी में अगर मेरे पास पैसा है ना, इकोनॉमी में एक साइकिल चलना बहुत जरूरी है. इफ आई हैव सम आइडल मनी आई शुड एक्चुअली इन्वेस्ट इट, बिकॉज हर एक चीज जो है ना वो आगे करती है. अगर मैंने कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, स्टार्टअप ने कुछ प्रोड्यूस किया या कुछ मैन्युफैक्चर किया, मुझे कुछ सेल हुआ आगे, या मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, मेरा मनी स्प्लिट हुआ. अगर मैं अपने पास ही पूरा पैसा रखूंगी एंड आई एम नॉट स्प्लिटिंग द मनी, द इकोनॉमी विल नॉट वर्क. The investment again is a very important part of your economy, and many people trust me. They only make money through investments. कुछ लोगों के पास इतने ज्यादा tactics होते हैं कि shares and bonds and debentures में invest करके actually ज्यादातर shares में ही invest करते हैं. They make hefty of money. So वो एक actually वो एक trick है जो उन लोगों के पास होती है. It's just a talent. इससे वो इतना पैसा बना पाते हैं, but
इन्वेस्टमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इतनी बेसिक लेवल पे अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट कि इन्वेस्टमेंट आपको पूरा समझ में आएगा. आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटिंग स्टूडेंट और मुझे अब तक इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली अगर आप कहोगे कि कौन से शेयर्स को एक्चुअली में खरीदना चाहिए तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा. सो इन्वेस्टमेंट इज दैट ट्रिकी कंसेप्ट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट बिकॉज हम सबके पास पैसा होता है, उस पैसे को यूज कैसे करें वो हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स इन एक्सचेंज. अब एक्सचेंज हम सब सुनते हैं और हम सबको पता है एक्सचेंज का बेसिक मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग एवरीबडी नोज, बट इकोनॉमिक मीनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट नो. सो एक्सचेंज का अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है, मैंने ये आपको पहले भी बात बताया है. अगर मेरे पास एक बुक है और अगर मेरे द बुक की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज है एंड आई एम अ शॉपकीपर एंड आई हैव गॉट अ बुक एंड द कॉस्ट ऑफ द बुक इज ₹20. आई वांट टू सेल द बुक इनटू द मार्केट. अगर मुझे मार्केट में बुक सेल करना है ना तो मुझे कस्टमर जो है उसने 20 रुपीज लेने चाहिए. दिस इज अ प्रीरिक्विजिट. सो कस्टमर क्या देगा मुझे? कस्टमर शुड हैव ₹20. I have a book of 20 rupees and the customer should have in the monetary terms ₹20. Okay. The exchange is what is there. एक कस्टमर को एंड एक सपोज शॉपकीपर अगर मैं एक ले लूं, ओके, कस्टमर क्या देगा? शॉपकीपर को ₹20 देगा इन एक्सचेंज ऑफ अ बुक ऑफ 20. ओके, दिस इज व्हाट इज एक्सचेंज जो हम रोज करते हैं. अगर मुझे एक बुक खरीदनी है तो ऐसे आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलता. फ्री में कुछ मिल रहा है तो गिफ्ट होता है एंड आप गिफ्ट के लिए भी एक्चुअली में कुछ ना कुछ पे करते हो, लेकिन आपको कोई चीज फ्री में नहीं मिलती. तो अगर एक सेल है, अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ देना है. इफ आई एम गेटिंग समथिंग आई हैव टू गिव समथिंग. सो इफ आई एम गेटिंग अ बुक एज अ कस्टमर, इफ आई एम गेटिंग अ बुक I have to give something. I will be giving the money. If not the money, then I will be giving something, right? अगर मैं कोई सर्विस दे दूं तो एक्चुअली बाटा भी यहाँ पे काम आ सकता है. अगर मैंने एक बुक ले ली और मैंने कहा कि नेक्स्ट 10 डेज तक मैं आपकी अकाउंटिंग करूंगी, एक बुक ले ली और मेरे पास पैसे नहीं है एंड आई सेड कि फॉर द नेक्स्ट 10 डेज आई विल डू योर अकाउंटिंग एज अ फॉर्मर स्टूडेंट. तो दैट इज अगेन एन एक्सचेंज because I am not taking something for free. I am giving something in exchange of what I have taken. Now this is what is exchange. Very simple concept, something that we already know, but only I think a revision was required. Last topic, distribution. Now distribution in depth आपको 12th standard में पढ़ाया है. नेशनल इनकम का जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें. लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन से डिक्शनरी मीनिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, राइट? इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्वियसली हैज टू बी इन मॉनेटरी टर्म्स. तो डिस्ट्रीब्यूटिंग आई थिंक से डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी. नो, मनी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद एनआई मीन्स नेशनल इनकम. अब जब आप 12th में जाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सारी जो एक्टिविटीज है ये इन जनरल आपको इनकम, नेशन को इनकम लाके देती है. नेशन को क्या देती है? नेशनल इनकम देती है. Now what is national income? That is again in 12th. तो वो इतना टेक्निकल यहाँ पे नहीं समझना है. तो नेशनल इनकम लाके दिया आप लोगों को. प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज सारे प्रोसेसेस थे. अब क्या हो गया कि नेशनल इनकम क्या गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए. टैक्सेस तो जमा कर दिए, ठीक है, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि गवर्नमेंट से उससे प्रॉफिट्स मिल गए, इनकम मिल गई. अब क्या पूरी की पूरी इनकम वहीं पे रखनी है? गवर्नमेंट को भी तो इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया. तो डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए? अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो बजट बना उसमें कहा है कि फार्मर्स को हमें, सारे फार्मर्स को हम एक मॉनेटरी लिमिट है उसके हिसाब से हम पेमेंट्स करेंगे. या हमने कहा कि चलो हम सबको जितने जिनके पास भी सपोज कहा बीपीएल कार्ड है हम इतनी पेमेंट करेंगे. राशन सिस्टम हो गया या मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ये सारी चीजें होती है ना. तो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो जरूरी है. दे एक्चुअली यूजिंग इट. सो व्हाट द गवर्नमेंट डू और एक्चुअली व्हाट द इकोनॉमी डू, इकोनॉमी हैज गॉट अ नेशनल इनकम. Let's not take it in with regard to the government because यहाँ पे government are not the only players in the economy.
प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्लेयर, बिकॉज कंज्यूमर्स नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो इकोनॉमी ही नहीं चल पाएगी, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट कि अगर इकोनॉमी को एक इनकम हुई, जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 लाख थे, मैंने एक स्टार्टअप किया, अब मुझे 100 रुपए की इनकम हो गई, अब मैं 100 रुपए की इनकम अपने पास ही रख लूं तो अगेन इट इज एन आइडल मनी, राइट? मैंने रख लिया पैसा, अगेन इट इज एन आइडल मनी। मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, मेरे पास कुछ मशीनरीज हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, मेरे 100 रुपए में से एम्प्लॉयज को जो या जो भी वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको जितना मैंने कहा है कि आई विल गिव यू दिस मच ऑफ मनी, मुझे उतना दे देना है, 5 रुपी 10 रुपी वॉट एवर जो भी मैंने उनके साथ फिक्स किया है, I have to pay it off. Now that is what comes under the distribution. Because एक national income होती है, इन सारे प्रोसेस से एक इनकम जनरेट होती है, and my work is to distribute that income properly in all the sectors. Okay. Now this is what is economic activities. Economic activity consists of 5 major activities: production, process of producing goods and services, consumption, process of consuming goods and services, investment, process of investing into various sectors of the economy. It can be in the form of a startup, it can be in the form of an investment into shares, debentures, bonds, etc. Exchange means nothing comes for free. If you are getting something, you have to pay something. That is what is exchange. In economy work, when there is dual thing, okay, even a barter is an exchange thing. And distribution means whatever national income is being generated, इकोनॉमी को लिए बहुत जरूरी है कि उसका प्रॉपर डिविजन हो। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल लूं, इफ आई हैव गॉट अ बिजनेस, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर मी कि मैं वो बिजनेस में जो इनकम हुई है उसे प्रॉपरली डिवाइड करूं, डिस्ट्रीब्यूट करूं, ताकि मेरा बिजनेस भी रन करे भैया, बिकॉज इकोनॉमी हैज टू रन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। So this was what all about the economic activities. I hope आपको ये concept काफी clear हो गया हो. Thanks for watching my video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा for more such educational videos. Thank you so much.